Hello everyone, welcome to IMPRINT IS. I'm Varun Kular and we're looking at the volume 1 of the economic survey, and today we're going to do chapter number 6, right? And chapter number 6 is targeting ease of doing business in India, right? And the chapter starts with a quote. The quote is: the king, that is the state, shall promote trade and commerce by setting up trade routes by land and by water and establishing market towns and port, right? And this is in Kautilya, 4th century BC. So even in that era, उस जमाने में भी, people were thinking of that, the state should promote trade and commerce. And how do they do that? By setting up trade routes, right? So ease of doing business is something that was happening even then, and therefore definitely in the 21st century, that's something of a sine qua non. That is very, very important कि ये तो होना ही चाहिए, ठीक है? So let's start. Okay, so first let's look at the Hindu article. The CEA, Mr. Subramanian, he says that the ease of doing business is critical, right? And he says that India needs to work on improving the ease of doing business, especially registering of property, paying taxes, enforcing contracts, and this is they're saying ease of starting a business also. These are 4 areas where India still needs to work upon, right? So ease of starting a business, in 2009 we were 169, we are at 136, still not really improved. Dealing with construction permits, we have improved drastically, right, to 27. Getting electricity, again, we have improved from 98 in 2011 to 22 right now in 2019. Registering your property has turned worse. So, it's something that I think we should focus upon. And this can also come as a question in your prelims, in that which of the following characteristics that, the ease of doing business ranking may, where we have gone worse, right? Remember, there was a question which came last year on the ease of doing business ranking, in which there were various parameters given, and law and order was also put as one of the parameters. So definitely this is a chapter to be remembered and very, very important. Okay. Right. So what does Krishnamurti Arvind Subramanian say? He says कि रेस्टोरेंट खोलना हो ना तो 45 डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं, लेकिन आपको अगर बंदूक खरीदनी हो तो सिर्फ 19. सो बंदूक आसान है प्रोक्योर करना देन रेस्टोरेंट खोलने से. So something is really wrong with India. Okay. Then if you want to start up a new company in India, 18 दिन लगते हैं, 10 प्रोसीजर है, कॉफन कम्बरसम. न्यूजीलैंड में हाफ अ डे लगता है, एक फॉर्म भरो, बूम, बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा. तो कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए, हमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना, राइट? देन इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट में बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इन इंडिया, राइट? काफी ज्यादा टाइम लग जाता है. 163rd रैंक है हमारा. So yeah, basically that is what this chapter is talking about. Now let's go for the chapter, right? So what does the chapter summary say? It says that ease of doing business is key to entrepreneurship. कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप में बिजनेस खोलना है तो उसमें बहुत जरूरी है. फिर इनोवेट करने के लिए एंड वेल्थ क्रिएशन, ये 3 चीजों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, ठीक है ना. सो अगर बिजनेस करना आसान है तो ऑटोमेटिकली इनोवेशन के लिए आपके पास टाइम बचेगा, वेल्थ क्रिएशन होगी और एंटरप्रेन्योरशिप होगी. सो कौन सी कैटेगरीज हैं जिसमें इंडिया अच्छा नहीं है? स्टार्टिंग अ बिजनेस, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, पेइंग टैक्स एंड इन्फोर्सिंग ऑर्डर. तो इन चारों में हमें फोकस करना है. फिर वो बोल रहा है कि जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो सिर्फ ये नहीं है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बट एफिशिएंसी ऑफ लॉजिस्टिक्स. कि सिर्फ ये नहीं कि आपका सामान कितने कॉस्ट में बनता है, बट कितनी जल्दी पहुंच जाता है दूसरी का, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. सो केस स्टडीज हैं इस चैप्टर में जिसमें बताया गया है कि कल्याण, सपोज आप एक मिर्जापुर से, कालीन भैया, आई थिंक एवरीबडी रिमेंबर्स, राइट, फ्रॉम मिर्जापुर. सो कालीन आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यूएस से, तो आपको कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना. या इटली से आप कारपेट इंपोर्ट कर रहे हैं टू राजस्थान, तो कितना टाइम लगेगा. सो स्ट्रेंजली जो प्रोसेस है जो इंपोर्ट का, वो बेटर है देन एक्सपोर्ट इन इंडिया, राइट. बट अगर आप ऑन द अदर हैंड, ये तो शिपिंग के हिसाब से, बट अगर आप नॉर्मल एयरपोर्ट में अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें इलेक्ट्रॉनिक्स का, बैंगलोर एयरपोर्ट की, तो बहुत ही तेज है. Okay, and we'll come to that. So maybe we need to focus, right? That maybe जैसे एयरपोर्ट में होता है वैसे ही यहाँ पे भी होना चाहिए पोर्ट्स में. Okay, so इंट्रोडक्शन चैप्टर की अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है. सो अब क्या आइडिया है? एज वी टॉक्ड अबाउट रिपीटेडली, थीम क्या है हमारे सर्वे की? $5 ट्रिलियन इकोनॉमी. तो थीम तो यही रहेगी, ठीक है ना, कहानी वही है, ठीक है ना. तो मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक वही चल रहा है यहाँ पे कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमने पहुंचना है. सो
अब ऑब्वियसली वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स बजट में भी अब बात करते हैं, तो स्टार्टिंग में बोला था कि वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हमारा 142 रैंक होता था 2014 में, अब बीजेपी गवर्नमेंट में 63rd हो गया है, सो हाफ से भी कम, तो अमेजिंग। एंड यू नो रिमेंबर नरेंद्र मोदी हैड टॉक्ड अबाउट टॉप 50 रैंक, ठीक है ना। आई थिंक वी कैन रियली रीच दैट, एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू द बीजेपी गवर्नमेंट फॉर दिस, राइट। जीएसटी एंड इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट, ये टॉप लिस्ट ऑफ रिफॉर्म्स हैं जिसने राइज ऑफ रैंकिंग हमारा किया है, ठीक है ना। बट अभी भी कहाँ इशू है, 136 रैंक है हमारा ईज ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस में, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी में 154 है, पेइंग टैक्सेस में 115 है, इन्फोर्सिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में 163 है, ठीक है। सो ह्यूज प्रॉब्लम। ऊपर से 58 डेज लगते हैं अगर आपको प्रॉपर्टी रजिस्टर करनी है, ठीक है ना, एन एवरेज 7.8% प्रॉपर्टी की वैल्यू, तो ये काफी ज्यादा है। और अगर आपका कोई सपोजली कोई कमर्शियल डिस्प्यूट है तो मिनिमम आपको 1445 days, so that's a little more than 3 years आपको लग जाएंगे। Now, just to revise how we have been doing, so ease of doing business, so dealing with construction parameters, getting electricity, ये आपको याद कर लो, आप नोट कर लीजिए प्लीज। Registering your property, getting credit for your business, protecting minority investors, paying taxes, trading across borders, enforcing contracts, resolving insolvency. So 2009 में हमारा 133rd रैंक था, फिर हम 2014 तक हम बिकेम वर्स ऑफ, बट रिमेंबर प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स में वी वर रियली गुड, ठीक है ना, ये काफी बेटर हो गया था, राइट। पेइंग टैक्सेस में ऑब्वियसली वी are not doing that great, we are still at 115, so not that great. Enforcing contracts still pretty much 182 था तब भी, इवन 10 साल में कुछ खास चेंज नहीं हुआ। रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी एज वी नो दैट आईबीसी से काफी फायदा हुआ है। देन गेटिंग क्रेडिट फॉर बिजनेस वाज गुड इवन बिफोर, अभी भी ठीक है। इंप्रूवमेंट कहाँ है अगर देखा जाए, 175 तक कंस्ट्रक्शन परमिट से डील करने का, देखो कितना क्विकली, तो 181 से सीधे 27 रैंक। गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी अगेन राइट वाज वेरी टफ, बिकेम इजियर, राइट। सो ऑब्वियसली दिस इज समथिंग आई वुड से, आपको अगर ये एनालिसिस आपका क्लियर है तो बहुत ही अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं इन यूपीएससी मेंस। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में आंसर एक्सपेक्टेड है, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, प्लीज ये अच्छे से रिवाइज करिए ये वाला चैप्टर। ओके लेट्स कंटिन्यू। सो अब ग्लोबल कंपैरिजन कैसे कंपेयर करें, इंडिया का कैसा है चाइना के साथ, ब्राजील के साथ या न्यूजीलैंड, विच इज द बेस्ट इकोनॉमी। सो एज यू नो दैट 18 दिन लगते हैं इंडिया में बिजनेस सेटअप करने में, पहले 30 दिन लगते थे 2009 में, अब 18, बट यू नो न्यूजीलैंड में एक ही दिन में हो जाए, हाफ अ डे में सिंगल फॉर्म फिल करो बन गया बिजनेस। तो कई बार तो मन करता है न्यूजीलैंड जाओ वहां बिजनेस सेटअप करो और फिर इंडिया में बोलो कि हम तो इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी registration is just another example, so 9 procedures 49 days 7.4 to 8.1% of property value, ठीक है ना। न्यूजीलैंड में सिर्फ 2 प्रोसीजर है प्रॉपर्टी रजिस्टर करने के लिए, मिनिमल कॉस्ट है 0.1। सो इंडिया में इट सीम्स एज द स्टेट गवर्नमेंट रेंट सीकर है ऑल टुगेदर, आप प्रॉपर्टी पे इतना 10% लगा रखा है, इसी वजह से सबसे करप्शन है यहाँ पे, राइट। आपने इतनी ज्यादा 10% रखा हुआ है स्टैम्प ड्यूटी टाइप, तो 7.4 से 8.1% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, तो ऑब्वियसली होता है क्या, पीपल डोंट पे। So the idea is it has to be minimal, right? एक flat rate होना चाहिए because there's a need for a flat rate, right, in property taxes. कि आप ये बंद करिए ये डिस्क्रीजन एंड ऑल, सो आप एक फ्लैट रेट रख लीजिए, जैसे 0.1% आई वुड से ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू अगर हो तो एटलीस्ट लेट्स से अब 10 करोड़ का घर है, राइट, अब उसका 0.1% भी बुरा नहीं है अमाउंट, लेकिन अगर आप बोलो कि 10% करोगे तो 1 करोड़ तो कौन ही देगा प्रॉपर्टी, तो होता क्या है वो 10 करोड़ कभी नहीं प्रॉपर्टी रजिस्टर करते, वो इसको रजिस्टर कर देते हैं 1 करोड़ की, लेकिन तहसीलदार को पैसे खिलाएंगे 1 करोड़ की रजिस्टर करेंगे फिर 10 लाख में रजिस्टर करा देंगे, और फिर होता क्या है ब्लैक मनी मार्केट इंकरेज होती है इससे। पेइंग टैक्सेस एंड इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, सो ये 2 एरियाज है जहां हमने बात की कि इंडिया अमेजिंग नहीं है, काफी प्रॉब्लम है, बट in case of paying taxes, number of payments per year has significantly reduced, right, over the last decades, but the time spent in the activity has not much reduced. India takes a lot of time, 250 to 54 hours per year to pay taxes. New Zealand just 140 hours में कर देता है, so obviously this is a problem. So paying taxes, right, I think this has somehow turned worse, right, personally experience also GST, right. Enforcing contracts is one parameter in which India's performance has been very poor over the years. India takes 1445 days to resolve average dispute. India, New Zealand में सिर्फ 216 दिन, and ये काफी बड़ा
concern है, constraint है. India's inability to enforce contracts and resolve disputes it has led to a huge problem. And I think the previous survey में बात की गई थी, last survey में कि आप legal system में करिए, legal system को reform करिए. Obviously, because obviously there's so much problems in that, बहुत मुश्किल है होना, but that is one reform that is the need of the hour. Then comparison with other countries, 10 प्रोसीजर इंडिया में गो थ्रू करने हैं आपको 17 से 18 दिन लग जाएंगे एंटरप्रेन्योर में. इंडोनेशिया में एक एक्स्ट्रा प्रोसेस लगता है, लेकिन 4 days लेस देन, तो 14 दिन में आपका इंडोनेशिया में बिजनेस खुल जाता है. ब्राजील में भी सेम टाइम में एज इंडिया. पाकिस्तान, टर्की, श्रीलंका less cumbersome process है to start a business in India. So starting a business again problem है. Startup India आपने नाम तो रख दिया, लेकिन startup होता नहीं है India, right? So this is a huge problem, I would say. तो startup India में आपको ease of doing business ranking का भी कुछ करना चाहिए, right? India has 5 less procedures than Brazil to register one's property. It takes less time, 31 days, than 49 to 68 days in India. Indonesia में सिर्फ 6 procedures हैं, Brazil जितना ही time लगता है, 31 days approximately. In case of paying taxes, although Indonesia has more than double the number of payments per year, right, than India, time कम लगता है paying taxes में. So Brazil also काफी पूरे. So no, but if you think about it, paying taxes में काफी बुरी हालत ही है हर जगह, right? But I think GST has made that a little worse. Then India's performance in contract enforcement काफी poor है, 163 out of the enforcing contracts. ठीक है ना, सिर्फ अफगानिस्तान, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे पूरा है इंडिया से, so huge problems. फिर next टॉपिक था, राइट, डेंसिटी ऑफ लेजिस्लेशन एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स इन मैन्युफैक्चरिंग. अब वेरी इंटरेस्टिंगली सबसे कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है इंडिया में गवर्नेंस का. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कंफर्म करना पड़ेगा 6796 कंप्लायंस आइटम्स है. वैसे ऑब्वियसली ये सब आप पे नहीं लगेंगे, बट आपको एक्चुअली देखना पड़ेगा कि आप पे कौन सा है, तो ऑब्वियसली ह्यूज प्रॉब्लम. देन सबसे इंटरेस्टिंग बात हमने जब बात की थी कि दिल्ली में राइट पुलिस ईटिंग हाउस लाइसेंस भी चाहिए. ठीक है ना, वेरी इंटरेस्टिंग, दिल्ली एंड कलकत्ता में. तो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स नीडेड टू ऑब्टेन दिस लाइसेंस फ्रॉम द पुलिस इज 45, राइट. आर्म्स एंड एम्युनिशंस भी अगर आपने मेजर फायरवर्क्स कुछ भी करना है ना, तो भी 19 से 12 है. तो काइंड ऑफ टेल्स यू दैट देयर आर रेगुलेटरी हर्डल्स इन ओपनिंग अ रेस्टोरेंट, right? And that's why people who may open a restaurant, right, say that it's a huge challenge. Then construction permits, Hong Kong top rank है इसका construction permits में. 2 महीने लगते हैं to obtain a construction permit. दिल्ली में 4 महीने लग जाएंगे. 35 days लगेंगे water and sewer connection में दिल्ली में, right? 2014 में 186 days लगते थे, right? तो obviously improvement हुई है. 2019 में 98 से 113 दिन लगते हैं. So warehouse cost भी कम हो गया है, but still is something that we should really focus upon. ठीक है, number of procedures, cost of warehouse, time, सब कुछ we can reduce further. Right, this is the basic chart from the survey, right? So Delhi में 113 दिन, हांगकांग में 169, right? And cost of warehouse भी काफी कम है, right? So they've given this how it happens. So request and obtain release of building sanction plans में सबसे ज्यादा टाइम लगता है. So look at this bottom line. Then obtain completion occupancy permit में बहुत प्रॉब्लम है. Request sewer connection वगैरह में बहुत प्रॉब्लम है. तो this tells you that ये locations हैं जहाँ पे rent seekers बैठे हैं. It seems कि यहीं पे करप्शन होती होगी. It means कि अगर कोई ज्यादा टाइम ले रहा है तो ऑब्वियसली देयर इज अ चांस फॉर करप्शन हैपनिंग देयर, राइट? सो नीड्स टू डू समथिंग हियर. सो मे बी जैसे हांगकांग में है वन स्टॉप सेंटर है कोई, तो वैसे सिंगल विंडो फॉर्मेट में किया जाएगा. Now, achieving scale across businesses. So one of the major issues that get in the way of business efficiencies of scale. होता क्या है, manufacturing units in India have small capacities and therefore low manufacturing efficiencies. Right? Vietnam, Bangladesh, China are able to progress in the value chain by increasing their competitiveness, by improving their delivery time, domestic production capacity, etc. Right? Compared to Bangladesh, China, and Vietnam, which have more than 80% of market value by exports, India सिर्फ 80% small enterprise ही करता है. ठीक है ना? So India में it can take 7 to 10 days to reach a port, but Bangladesh, China में less than a day लगता है.
सो दैट इटसेल्फ टेल्स यू कि आप बहुत क्विकली नहीं कर पाएंगे. स्मॉल एंटरप्राइजेस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना. रीजन मे बी बिकॉज ऑफ दिस ही है कि स्मॉल एंटरप्राइजेस इंडिया में ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, ऑन द अदर हैंड चाइना, वियतनाम एंड बांग्लादेश में लार्ज एंटरप्राइजेस कर रहे हैं. देन ट्रेडिंग क्रॉस बॉर्डर्स भी रिकॉर्ड टाइम एंड कॉस्ट एसोसिएटेड है. ट्रांसपोर्टेशन बाय पोर्ट्स मोस्ट फेवर्ड है देन बाय रेलवेज एंड पोर्ट्स. इंडिया में थोड़ा उल्टा है, ठीक है ना. राइट. इटली जो देखा जाए सबसे अच्छी जगह है इन बॉर्डर कि कैसे 1 घंटे में आप निकल सकते हैं. कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस इज जीरो इन इटली. इंडिया में 260 से $280 लग जाएंगे फॉर export and to $360 to $373 for import. So this is a huge problem, right? So India takes 68 to 60 hours and 80 to 82 hours in broader and documentary compliance for exports and imports. इटली में 1 घंटा लगता है. तो that tells you that यार ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स में हमें कुछ करना पड़ेगा. Right. This is again the same thing which we've talked about कि border compliance में कितना time लगता है दिल्ली मुंबई में, not that great. Import border compliance में again, right? Something has to be done here. Italy देखो कुछ भी time नहीं लग रहा, right? Look at this here and look at this, right? So that tells you that something has to be done about border compliance at least. Then अब एक term है in the survey which is authorized economic operators. ये एक प्रोग्राम है अंडर द एजेस ऑफ वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन सेफ फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड्स टू फैसिलिटेट ट्रेड. आइडिया क्या है? टू इनहांस इंटरनेशनल सप्लाई चेन सिक्योरिटी एंड फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ गुड्स. सो ये लोग ना थोड़ा आपको जल्दी काम हो जाएगा आपका, अगर आपका AEO स्टेटस है. सो आप एक सिक्योर ट्रेडर हैं अगर आपके पास ये स्टेटस है, रिलायबल ट्रेडिंग पार्टनर है, राइट. ये वॉलंटरी प्रोग्राम है, लेकिन इसके लिए आपको क्या फुलफिल करना पड़ेगा? आपके पास एटलीस्ट 25 इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स लास्ट फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए, हैंडल करना चाहिए आपको. बिजनेस एक्टिविटी फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर आपका होना चाहिए, राइट. एप्लीकेंट्स में हैव बीन फाइनेंशियली सॉल्वेंट फॉर द लास्ट 3 years. आपका कोई फ्रॉड, फॉर्जरी, आउटराइट स्मगलिंग इस टाइप का कोई केस नहीं होना चाहिए, राइट. जो सर्विस टैक्स हमने कलेक्टेड कस्टमर्स एंड गवर्नमेंट को ना डिपॉजिट किया गया इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स. सो ये बेसिकली ये चीजें क्या है, ये प्रीलिम के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकती हैं, इसलिए वी टॉकिंग अबाउट दिस. तो अब हमने केस स्टडी में क्या करेंगे, 2 तरह देखेंगे. एक बार एक नॉन AEO, ठीक है ना, राइट. राइट. सो केस स्टडी ऑफ एक्सपोर्ट अपैरल. तो अगर हम देखें हमने एक्सपोर्ट करना था टू मेन US से बाय नवाशेवा, ठीक है ना, फैक्ट्री दिल्ली से. तो 41 डेज लगते हैं फ्रॉम अ फैक्ट्री इन दिल्ली टू वेयर हाउस इन मेन. 19 आप डेज लगेंगे इंडिया में, 90 डेज एट सी एंड 3 days इन द यूनाइटेड स्टेट्स. सो अब यहाँ 3 दिन लगते हैं तो यहाँ भी 3 दिन लग सकते हैं देखा जाए तो ऐसा क्या हो रहा है, राइट. द सिमिलर एक्सरसाइज सेम हमने बात की थी, मिर्जापुर से आप राइट उत्तर प्रदेश में न्यू जर्सी से कर रहे हैं, तो 40 डेज में 13 days इन इंडिया, 22 days at sea and 4 to 5 days again in the US. Again अगर AEO हैं आप, राइट, तो आपको थोड़ा इंडिया में टाइम थोड़ा कम लगता है, ठीक है ना, बट फिर भी बहुत ज्यादा टाइम है. देखो USA में तो 4-5 दिन में ही हो रहा है, तो आप भी क्यों 4-5 दिन में क्यों नहीं. फिर इंपोर्टिंग में देखो, इंपोर्ट में क्विक है देखा जाए तो. Once the shipment is ready at the factory gate in Milan, it only takes 10 hours to transport the ships to Nepal, right? Shipment to Nepal 773 kilometers away, and this 2 घंटे लगते हैं कस्टम्स में, फिर सामान पहुंच जाता है, राइट. तो जस्ट इन टाइम वेल ऑयल्ड मशीनरी है वहां पे, राइट. अगर मिलान से आपने सामान मंगवाना है राजस्थान, 23 दिन हाई सी पे लगेंगे, मुद्रा पोर्ट हो गए 6 दिन मुद्रा पोर्ट पे लगते हैं, 2 दिन आउटसाइड द पोर्ट, 6-7 घंटे में एग्जिट हो जाएगा आपका. तो आप 31 डेज में पहुंच जाओगे, राइट. सो दैट टेल्स यू कि यार इंपोर्ट करना आसान है इंडिया में एक्सपोर्ट करने से, राइट. सो समराइज, इट टेक्स ओनली 1 day in Italy to transport and complete the border compliance and documentation. इंडिया में 8 दिन लगते हैं सेम चीज करने में. So I think something is wrong in India. I think we do need to digitize, we need to learn, right, from the other counterparts in Italy, right, and make sure that this happens very, very quickly. अब इश्यूज क्या हैं विद इंडिया इंपोर्टिंग? इनऑर्डिनेट डिलेज हैं इन लोडिंग एंड कस्टम प्रोसेस इन इंडिया, तो हमें बेसिकली मैकेनाइजेशन की जरूरत है. प्रोसेस ऑफ इंपोर्ट्स आयरॉनिकली आर बेटर फॉर एक्सपोर्ट्स. लार्ज वेरिएंस इन प्रोसेस टाइम मींस एक्सपोर्ट्स आर फोर्स्ड टू अकाउंट फॉर uncertainty by padding extra waiting time. Turn on ship continuous decline हो रहा है, पहले 4.67 days होते थे, अब 2.48 days हैं, which is very good, right? But still I think these 3 things we need to focus upon, right? हमें देखना पड़ेगा कि भाई ज्यादा टाइम ना लगे लोड करने में, कस्टम में, द सी पोर्ट में इतना टाइम क्यों लग रहा है,
ठीक है ना. And it kind of points to a lot of corruption, right, and mafia on seaports, it seems, right. फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है. अब कंपेयर करो, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट कर रहा हूँ फ्रॉम चाइना टू बैंगलोर, राइट, तो जैसी शिपमेंट रजी हुई शेंजन में 2 दिन लगे, हांगकांग एयरपोर्ट आया, एयरपोर्ट में 1 घंटा लगता है, 2 घंटे कस्टम में, 4 घंटे लोड करने में, 5 घंटे ट्रैवल टाइम है, राइट. एयरपोर्ट पे पहुंचोगे बैंगलोर में आप, राइट, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट, 14 घंटे लगेंगे आपको, 11 लगेंगे अगर आप AEO हैं कंसाइनमेंट आपकी, और आप पहुंच जाओगे वेयर हाउस में. तो देखो, that tells you something that Indian airports vastly superior than seaports for exports and imports. AEO से significantly process हुआ improve, even smooth for a non-EA importer. Indian processes can beat international standards. तो ये conclusion है हमारा. तो हमें basically हम कर सकते हैं अगर हम चाहें, that means. Right. Just to revise, I think this was the chapter, right, कि हमारा जो अभी we need to focus on registering property, right, ease of starting a business, पेइंग टैक्सेस, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ये हमें फोकस करना है. हम 142 से 63 आए हैं, राइट, वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस रैंकिंग में. इंडिया में इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बहुत टाइम लगता है, राइट, 1445 डेज versus 216 days in New Zealand, 496 days in China. Paying taxes takes more than 250 hours, 140 hours लगते हैं न्यूजीलैंड में, 138 in China, right, and 191 in Indonesia. अगर आप कुछ भी ओपन करना चाहते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, बहुत ज्यादा क्लियरेंस चाहिए आपको. तो दैट दिस नीड्स टू बी रैशनलाइज्ड, राइट. केस स्टडीज शो टेल्स अस कि इंपोर्ट के लिए बेटर है, एक्सपोर्ट करना मुश्किल है. एयरपोर्ट्स बेटर हैं rather than the ports, राइट. टर्न अराउंड शिप डाउन हो भी गए हैं, उसके बावजूद प्रॉब्लम चल रही हैं, राइट. सो द नीड ऑफ द आर इज दैट हम बेसिकली फोकस करें, राइट, सिंप्लीफिकेशन ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट. इंडिविजुअल सेक्टर्स पे टारगेट कर सकते हैं हम, राइट, टारगेटेड अप्रोच बना सकते हैं फॉर ईच सेगमेंट कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, राइट. तो क्या करना चाहिए, स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द लॉजिस्टिक्स प्रोसेस एट सीपोर्ट्स रिक्वायर क्लोज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लॉजिस्टिक डिविजन्स एंड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, शिपिंग एटसेट्रा. तो सारी जितने भी लोग हैं इनको एक ऑफिस में बना दो, बिठाओ और इनसे बोलो कि भाई तेज करेगा. So simplification of ease of doing business landscape of individual sectors such as tourism and manufacturing पे भी focus किया जा सकता है, right? Thank you for listening to us. If you have any questions, do ask. ये chapter काफी important था, इससे last और objective question आ रखा है, right? So if you want to ask any questions, do like, subscribe to our channel, right? Comment. Our Telegram group you can join for the PDF of this video. Thank you for listening to us.